ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे. I am really honored today to be here in this unique institute with the vision by its chairman Shri Sharma Sahab to bring three institutions together: the SR College of Engineering and Management, SR Institute of Information Technology, and SR College of Pharmacy. I feel that the education of country needs to be upgraded, especially the higher education, and for spreading the values of the higher education, all the people who have started this pioneering work, they are commendable. They need a lot of laurels, and Sharma ji, who happens to be very close to my father, who was district and session judge in Gwalior around 20 years back, I think Sharma ji has started a very good venture in a very scenic place away from the hustle and bustle of the city of Gwalior. I know all of you must be coming from Gwalior, and the buses plying you from there to here must be doing a lot of endeavor. But when you will be having your hostel campus ready, then you will be really enjoying the campus. The campus life is something very unique. The Shri Ram College has started, and I don't know from where he got the vision of Shri Ram College, but Shri Ram Sharma Acharya is my guru's name. So somehow I feel some closeness to the institute because it is the same name. All the directors and all the dignitaries attached to this institute, including all the three institutes, directors, chairman, group director, principals, teaching faculties, all the students, boys and girls. My subject today is key to success. As you can see, safalta ki kunji. Now, everyone wants to be successful. A dishonest person also wants to be successful by dishonesty. An honest person wants to be successful by honesty. And there are a lot of people running on the same route to become a successful person. A successful businessman, a successful doctor, a successful engineer, a successful pharmacist, a successful scientist. Everybody has a vision in his mind about success. Now, today I will be telling you certain few things which will enlighten you about what is success. Basically, what is success? One of the principles given by my Gurudev, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, कि अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करें. My Gurudev in 18 संकल्प मैनिफेस्टो ऑफ न्यू एरा ही गिव्स कि अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए वी विल अडॉप्ट द एथिक्स. सो आई होप यू अंडरस्टैंड माय मोटो इज सक्सेस विथ एथिक्स, सक्सेस विथ कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड इन डे टू डे लाइफ. इफ यू हैव गॉट सक्सेस विथ दैट प्रिंसिपल, आई होप दैट आई विल बी एबल टू डिलीवर टू यू द मेन पॉइंट, दैट द मेन पॉइंट विल बी बेस्ड ऑन द value based success, how you can achieve that success. Let us see what is success defined. A favorable course or termination of anything attempted. किसी भी चीज़ का आप कोशिश कर रहे हैं तो उसका टर्मिनेशन पॉइंट ऐसी जगह आके खड़ा हो जहां आप फेवरेबल एंड हो, सक्सेस सफलता के रूप में. द गेनिंग ऑफ पोजीशन, फेम, वेल्थ एटसेट्रा. एक सबसे बड़ी चीज़ होती है सक्सेस में कि जब प्रसिद्धि मिल जाती है, पैसा आ जाता है, तो अंदर से एक शांति मिलती है, सुख शांति मिलती है. वो जो सुख मिलता है वो सक्सेस का एक चिन्ह है. दिस इज सिम्टम ऑफ सक्सेस. सिनोनिम्स क्या हैं इसके? अचीवमेंट, सेटिस्फैक्शन, प्रॉस्पेरिटी, एमिनेंस एंड द स्टेशनिंग समवेयर. नाउ आई वाज टोल्ड बाय द ग्रुप डायरेक्टर who was just now speaking that 80% placement has been done. Now this is success of the institute. The 80% have been placed at a place where they passed out and ultimately they got the jobs. Attaining a job after passing out the examination is a success, and this is success in your endeavor which you have
done in your last 5 years or 6 years, whatever is the course. Now, what I think is, a prominent thinker on success has said, like Albert Einstein, 1879-1955, he said, try not to become a man of success, but rather to become a man of value. This is Einstein's word, which says कि आप कीमती आदमी बनिए बजाय इसके कि आप सफल आदमी बने. आपकी गिनती सफल में गिनी जाएगी तो रॉकफेलर वॉज ऑल्सो ए सक्सेसफुल मैन, हेनरी फोर्ड वॉज ऑल्सो ए सक्सेसफुल मैन. इफ यू वॉन्ट टू से ask me, then Dhirubhai Ambani was also a successful man. His 2 sons are also successful men, achieving money and ultimately succumbing to that money. Harshad Mehta, who did a scandal in this share holdership, was also a successful man in the initial stage. तो ये नहीं, नीति अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हो, rather to become a man of value. Einstein says कि आप मैन ऑफ वैल्यू बनिए, कीमती आदमी बनिए. और कीमती आदमी सोने का होता है. लोहे की चीज़ हर कोई होती है, पर लोहे को यदि सोना बना दे तो वो बहुत कीमती हो जाता है. तो हम कीमती बने. Many of the life failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. Edison says, हमारे जीवन की बहुत सारी असफलताएं सिद्ध बताती हैं कि बहुत नज़दीक हम लोग पहुंच गए थे सफलता के, परंतु हमने छोड़ दिया रास्ता. बहुत सारे बच्चे 4th ईयर फाइनल ईयर तक आते आते छोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई होते बनती. आपके यहाँ 5 साल का कोर्स है ना, यू गॉट अ 5 ईयर कोर्स, 4 ईयर कोर्स. ओ आई हैव पास टू 5.5 ईयर्स कोर्स. तो मेरे साथ मुझे याद आता है 4 ईयर कोर्स. उसमें कई बार क्या होता है, मेरे पास भी कई बच्चे आते हैं, दे आर फ्रस्ट्रेटेड, दे आर डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा बीच में हताश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि पढ़ाई पूरी नहीं करते बनती. ज़बरदस्ती उनको मोटिवेशन देना पड़ता है कि 1 साल और बचा है बेटा, कर लो, किसी तरह से कर लोगे तो तुम्हारे पास में डिग्री होगी, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा. 3 साल मेहनत की क्या फ़ायदा. कई लोग असफलता को समझ नहीं पाते. असफलता समीप पहुंचने के बाद पता चलता है कि हाउ क्लोज यू वेयर टू द सक्सेस, द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ द सक्सेस. एडिसन हैज टोल्ड अस, फेल्यूर ओनली इंडिकेट्स अ हाफ हार्टेड एफर्ट्स टुवर्ड सक्सेस. हमारे गुरुदेव का वाक्य है, असफलता सिर्फ यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ. अगर पूरे मन से नहीं किया है तो आपको असफलता मिलेगी, पूरे मन से किया है सफलता मिलेगी. तो ये सफलता के जो कुछ कीज़ हैं उसमें ये कि हमारी सफलता डिपेंड करती है मनोयोग के ऊपर. योर कंसंट्रेशन, योर अटैचमेंट टू द कॉज एंड योर डेडिकेशन टू द कॉज. श्रम, मनोयोग, त्याग, आसक्ति से त्याग और निरहंकारिता, बिना किसी अहंकार के भाव से किया गया काम, ये 4 चीज़ें सफलता की कुंजी है. इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक वैल्यूज़, ए हाईली डेवलप्ड लेबर अच्छी तरह से परिश्रम करें, मनोयोग करें, मेंटल कंसंट्रेशन लगाएं. स्वामी विवेकानंद एक बात कहते थे कि अगर मुझे फिर से जन्म लेने को मौका मिला तो मैं 2 चीज़ें सीखूंगा. किसी क्लासरूम में जाकर मैं सीखूंगा डिटैचमेंट टू आसक्ति एंड कंसंट्रेशन. कैसे कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा और किया जाए. की टू सक्सेस इज कंसंट्रेशन and detachment to the all other things which are not in synchrony with our work. बहुत सारी डिटेचिंग चीज़ आ जाती हैं, हमारा मन भटका ले जाती हैं, बहुत सारी आसक्तियाँ हमें मन को भटका देती हैं, उनसे डिटेचमेंट. और अटैचमेंट टू द कॉज, जो आपका कारण जिसके लिए आप जुड़े हुए हैं, दिस इज द मेन रीजन. थॉट्स ऑफ पंडित श्री राम शर्मा ऑन संकल्प, सक्सेस फ्रॉम संकल्प, मैंने जो आपको बता दिया वही वाली है, मैं इसको आगे डिटेल नहीं बताना चाहता. सक्सेस मीन्स एवरीथिंग टू सम पीपल. कुछ लोगों के लिए सब कुछ सफलता ही है. सफलता नहीं मिली तो उनके जीवन का सारा स्वरूप समाप्त हो जाता है. वो कहते हैं हमारा सारा जीवन बेकार चला गया. मटेरियल प्रॉस्पेरिटी सिनोनिमस टू इट. कई बार लोग कहते हैं कि भौतिक सफलता जो है वही सब कुछ है, जबकि मैं समझता हूँ कि सफलता का मतलब ये होता है कि आपने अपने आप को कितना कुशल बनाया, हाउ स्किलफुल यू आर इन अचीविंग दैट टारगेट. हो सकता है आपने कुछ सीखा हो काम करते करते, आप सफल ना हो पाए हो, पर जितना आप होए उससे आपने बहुत कुछ सीखा. समथिंग विच सेटिस्फाइड अवर ईगो. किसी चीज़ से आपके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिला हो तो वो सक्सेस का मतलब है. एंड देन रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सेल्फ एस्टीम. ये 4 चीज़ें हमारी सक्सेस के मीनिंग्स हैं. अगर आप ये इनके 4 के माध्यम से समझ लें तो सफलता 4 pronged है. कुछ लोगों के लिए सब कुछ है, कुछ लोगों के लिए भौतिक प्रगति है, कुछ लोगों के लिए ईगो की संतुष्टि है, और कुछ लोगों के लिए आत्माभिमान की, स्वाभिमान की अभिव्यक्ति. अरे मैं सफल नहीं हुआ, ये मेरे लिए डूब मरने की बात है. ये एक मन में बात आ जाती है.
ये नहीं आना चाहिए हमारे। सक्सेस इज अल्टीमेटली गोल फॉर ईच न्यू एंटरप्रेन्योर। आप में से हर कोई young boy and girl who are going to become engineer, who are going to become pharmacist, or who are going to become manager, you are going to be a new entrepreneur in the multinational concept of of whole world. The whole world is now has become a village, small village, and in this village, in a global umbrella, all of us are living together. So you will become a new entrepreneur, an entrepreneur with a lot of potential in his life, his or her life. You are an executive aspiring to become CEO. You are becoming an executive to become chief executive officer. Many of you, maybe later on when Sharma ji writes a book on his achievements of this institute, he might write कि some of my students reach to the CEO post of some organization. पहुँचेंगे, बहुत सारे इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे और ढेर सारे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन BPOs and all this coming up. India is becoming a hub. India is enlarging itself. भारत बड़ा बनता चला जा रहा है धीरे धीरे, भारत सारे विश्व में फैल रहा है, तो नेचुरली नॉलेज इकोनॉमी विल प्रिवेल, एंड व्हेन नॉलेज इकोनॉमी विल प्रिवेल डेफिनेटली यू विल बी one of you, two of you, and I say many of you will become CEO of the organizations, various organizations. A highly ambitious person attempting to reach to top, you might be a highly ambitious person reaching to the top of the organization. A social worker trying to serve society, you might become a social worker, a humble social worker, or you might become a sadhak aspiring to go for spiritual heights. Now when I count myself in that, people call me when I showed this slide to the American students and girls and boys, our NRIs, sir, you are all five. You are also spiritual seeker, you are a social worker, you are a CEO of the organization. I said no, I am the bottom of this. A sadhak aspiring to become or reaching spiritual heights. This is for me. But you might become out of these five anyone. आप में से सभी के अंदर ये गुण है कि आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अख्तियार कर सकते हैं। सफलता की कहानी लिखी जाती है, सफलता के बारे में सपने देखे नहीं जाते, सफलता अपने आप अपनी आंखों से देखी जाती है। When Napoleon Bonaparte says that today I am going to conquer Alps, then people start laughing. They say till today nobody has done it because it is impossible. ये असंभव है। तो उसने कहा असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। और नेपोलियन बोनापार्ट चढ़ता हुआ चला जाता है और वो आज को क्रॉस कर लेता है, तब लोग कहते हैं कि नेपोलियन के लिए कुछ असंभव नहीं है। असंभव शब्द को उसने संभव बना दिया। तो बच्चों, ये जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें ये मान के चलना चाहिए कि सक्सेस जो है वो एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है और उसको अचीवमेंट को पार करने के लिए आपको इन सब सीढ़ियों से गुजरना पड़ सकता है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स, a social service, ambition which you are taking together, an aspiration, and then a new entrepreneurship, a concept of entrepreneurship. Now what are the hurdles in achieving success? सफलता पाने के मार्ग में बाधाएं क्या क्या है? ओन वाइसेस, आपकी खुद की डेफिशिएंसीज, खुद की कमियां, क्या क्या कमियां हो सकती हैं? अहंकार, आपके खुद की दुर्बलताएं, खुद की आपकी शुद्रताएं, खुद के आपकी बहुत सारी काम न कर पाने की वृत्ति या मनोयोग नहीं हो पाता। हम लोग कई बार कहते हैं विल डू इट टुमारो, कल करेंगे, और कल करेंगे तो कल कभी नहीं आता। प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। प्रोक्रेस्टिनेट द वर्क। इन दिस कंट्री, आवर कंट्री, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। जहाँ आप किसी काम को आगे बढ़ा देंगे और कहेंगे कल करेंगे, तो फिर कल कभी नहीं आएगा। जो सक्सेसफुल आदमी होता है उसके लिए कल नहीं होता, उसके लिए आज ही होता है। आप उस कल को आज बना दीजिए और कहिए हम आज ही करेंगे। और कैसे नहीं होगा? इफ़ यू थिंक दैट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। हार्मोनल चेंजेस, इनएबिलिटी टू कोप विद इट। मेनी ऑफ यू आर पासिंग थ्रू ए स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, पोस्ट प्यूबर्टी स्टेज इन विच द हार्मोनल चेंजेस आर देयर, सो यू हैव टू ओवरकम देम। लैक ऑफ द एबिलिटी टू मेक ए गोल, गोल सेटिंग होना बहुत जरूरी है। सक्सेस के लिए गोल सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। If you don't set a goal, you will not become successful. Then your willpower has to be strong. If it is low, you will not be able to do it. संकल्प शक्ति मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी संकल्प शक्ति नहीं है, सफलता की जननी संकल्प शक्ति है। यदि संकल्प मजबूत है तो आप सफल होंगे। और सबसे बड़ा बाधक क्या है? या आप में से कोई पढ़ के जोर से सुना सकता है क्या लिखा है मैंने?
कितने, अच्छा कितने लोग हैं जो आलसी और प्रमादी नहीं है? हाथ ऊंचा करें जो आलसी प्रमादी नहीं है। 2 हाथ उठे, केवल 2 हाथ। इसका मतलब बाकी आलसी और प्रमादी हैं। मेरा प्रश्न समझने में कोई दिक्कत हुई होगी? फिजिकल लिथार्जी एंड मेंटल लिथार्जी। हमारे मन में क्या आता है, ये काम कल कर लेंगे, पढ़ाई कल कर लेंगे, आज सो जाते हैं, 1 घंटे सो जाते हैं। शरीर को आप आदेश देते हैं कि थोड़ा शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, बैक में पेन हो रहा है, आज काम नहीं करते, आज लिखने का मन नहीं कर रहा। आपके पीठ में दर्द नहीं होगा तो मैं आपको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकल एंगल से बताता हूँ, आपके पीठ में दर्द चालू हो जाएगा। आपको लग रहा है मेरे सिर में दर्द तो नहीं हो रहा है, आज लिख के क्या करूँगा, कल लिख लूँगा, आपके सिर में दर्द चालू हो जाएगा आधे घंटे बाद। There will be some virus from somewhere coming and haunting you, and you will start getting the headache, which will be very severe. And then someone will, you will call someone, किसी को बुलाएंगे और आप उससे पूछें क्या करें, बोले सो जा थोड़ी देर के लिए। 2-3 घंटे सो के निकल गए। शाम को देखा मुझे हल्का सा बुखार लग रहा है, जरा देखना। बुखार नहीं भी होगा तो पड़ोसी कहेगा सिंपैथी गेन करने के लिए, हाँ यार तुझे बुखार है तो एक बार डॉक्टर को दिखा दें। डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, डॉक्टर कहेगा 2-3 दिन के रेस्ट ले लो। आप बीमार नहीं थे, आपने अपने आप को खुद बीमार किया है। संकल्प, हमारे इच्छाओं के माध्यम से हम स्वयं बीमार बनते हैं, हमारी इच्छाओं के माध्यम से हम स्वयं स्वस्थ बन सकते हैं। ये कल्प वृक्ष है, मस्तिष्क को कल्प वृक्ष कहा गया है। जैसा आप चाहेंगे वैसा आप सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। तो सबसे बड़े घातक क्या है? आलस, प्रमाद। प्रमाद यानी मानसिक, मेंटल प्रोक्रेस्टिनेशन। आलस से मतलब शारीरिक। तो मेरा प्रश्न फिर से समझ में नहीं आया हो तो फिर से बताएं, आप सबके अंदर आलस से प्रमाद का दुर्गुण तो नहीं है? तो फिर हाथ ऊंचा करिए। जिनके अंदर दुर्गुण नहीं है वो हाथ ऊंचा करें। ये पॉजिटिव लैंग्वेज बोली मैंने तो समझ में आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर ये ऐसा ही है तो बहुत अच्छा है, यू विल ऑल बिकम सक्सेसफुल। काइंडली कंसिडर ऑन द स्लाइड प्लीज। हर्डल्स इन अचीविंग सक्सेस। मीडिया नेटवर्क आपको आज सबसे बड़ा जो है DTH और ये सब चीज़ें तकलीफ देती। इनसिक्योरिटी, हमारा कैरियर की इनसिक्योरिटी। टेरर इन द सोसाइटी, वी आर इनसिक्योर बिकॉज ऑफ टेरर इन द सोसाइटी। आतंकवाद, सारे नेता उसी खतरे में जीते हैं। अभी हम आ रहे थे तो हमारा काफिला रोक दिया गया बिकॉज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट की वजह से सारे लोग रुके हुए थे। अब ये जितने भी VIP ट्रेवलिंग होती है, VIP ट्रेवलिंग इज इन इनसिक्योरिटी। एनी टाइम एनी इंसिडेंट में हैपन। तो जितने भी पुलिस पर्सनल हैं, जितने भी सिक्योरिटी के लोग हैं, वो सब इतने इनसिक्योरिटी में जीते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज। देन एनवायरमेंटल सराउंडिंग्स, जो एनवायरमेंटल हमारे चारों तरफ का वातावरण है वो हमें प्रभावित करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इन्फ्लुएंसिंग अस एंड पॉल्यूशन एंड हैजार्ड्स ऑफ द पॉल्यूशन आर अफेक्टिंग अस। दीज आर द हर्डल्स इन अचीविंग सक्सेस। So try to be away from the hurdles and you will be successful. Hurdles in achieving success: ignorance about dharma, religion. What is religion? Religion means dharana dharmityahu dharmo dharyati praja. One which can preserve your life and the life of others is religion. Non-involvement in dharmic activities, mechanical performance and rituals without shraddha and understanding. मुझे क्या लगता है कि धर्म के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं है। Dogmatic is ritualistic religion is not real religion. Real religion is worshipping your life deity. जीवन देवता की साधना आराधना। आप अपने जीवन देवता को जितना प्रखर करेंगे, जितना परिष्कृत करेंगे, परिमार्जित करेंगे, उतना ही आप सफल व्यक्ति बनेंगे। और भगवान को आप क्या माने? भगवान को आदर्शों का समूह मानिए, सत्प्रवृत्तियों का, सद्गुणों का, श्रेष्ठताओं का, आइडियल्स एंड क्वालिटीज एंड वर्च्यूज व्हेन दे गेट कलेक्टेड टुगेदर, summum of these is God. If you connect all these together, then the whole network is God. अगर उसको भगवान मानते हैं तो धर्म के बारे में एक सही कंसेप्ट होना जरूरी है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हर्डल। आपके माता पिता कहते हैं तुम वहाँ रहते हो, हमसे घर से दूर रहते हो, तुम पूजा वूजा करते हो कि नहीं, उपासना करते हो कि नहीं, साधना करते हो कि नहीं। मैनी ऑफ देम नो दैट यू डू इट बट मैनी ऑफ देम डू नॉट नो। तो आप क्या कहते हैं? हाँ हम करते हैं, रोज सुबह भगवान को याद कर लेते हैं। और भगवान की फोटो के सामने 1 घंटा बैठते हो कि नहीं? नहीं बैठते आप। परंतु आप कह देते हैं माँ को, पिता की संतुष्ट रखने के लिए, हाँ हम बैठते हैं, 1 घंटा पूरा करते हैं। नहीं करते यार, जरूरी नहीं है। असली चीज़ क्या है? अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करना, अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करना। मैं नहीं कहता कि स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस बेकार है, पर धर्म के नाम पर किया गया कर्मकांड, धर्म के नाम पर किया गया प्रदर्शन बेकार। अगर उसमें मन नहीं लगे, माला करते हैं, उठा के देखते हैं कितनी हो गई, फिर नीचे रख लेते हैं। ये कोई माला करना है? ये माला करने वाले जो है इनका मन कहीं और भागता है और माला हाथ में रहती है। कर का मन का छोड़ के मन का फेर, हाथ की माला छोड़ के मन का फेर। ये असली माला तो वो है।
hurdles in achieving success: backbiting, leg pulling, jealousy, ego clashes, and feeling pride. I want the best. Now, if you want the best, you have to become best. आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा, आपको भी अच्छा डिलीवर करना पड़ेगा, आपको भी अच्छा दिखना पड़ेगा, अपने आचरण में अच्छाई उतारनी पड़ेगी। जितनी भी सफलताएं हैं ये सारी हमारे अंदर से निकलती हैं, और इसको अंदर से निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम साधना का एक स्वरूप समझें। दिस गिव्स इनर इक्विपॉइज, आंतरिक शांति, मानसिक कंपोजर, मेंटल कंपोजर, ब्लिसफुल जॉय, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, आध्यात्मिक उन्नति देती। द मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ द वन ऑफ द स्टोरी विच आई एम गोइंग टू टेल यू, एक शेर का बच्चा बिछुड़ गया और बिछुड़ करके भेड़ों के दल में मिल गया, और भेड़ों के दल में जाकर के भेड़ के बच्चे के साथ वैसा ही बोलने लगा जैसे भेड़ के बच्चे बोलते थे। ऐसे करीब 3-4 महीने बीत गए। 4 महीने में वो उन्हीं के साथ घास भी खाने लगा, उन्हीं के साथ ये मानने लगा कि मैं भी यही हूँ। तो दोनों की शक्ल अलग अलग थी। एक दिन एक शेर ने हमला बोला भेड़ों के ऊपर, और जब भेड़ों पर हमला बोला तो उसने देखा शेर का बच्चा यहाँ कैसे। तो उसने उससे पूछा, अब उनकी भाषा होती होगी, कोई ना कोई लैंग्वेज होती होगी, उससे पूछा अरे भाई तू यहाँ कैसे। तो उसने अपनी म्याऊं म्याऊं की आवाज़ में बोला, जो भेड़ बोलती है उस आवाज़ में। बोले नहीं तो तेरी आवाज़ ये नहीं है, तू मेरे साथ चल। उसको ले गया, पानी के किनारे ले गया, तालाब के किनारे, उसकी शक्ल दिखाई, देख तू है ये और ये देख मैं हूँ, दोनों को देख, तू मेरा बेटा है, और तू मेरा बेटा होने के नाते, मेरे जैसा होने के नाते तुझे शेर है। नाउ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, उसके बाद उसको दहाड़ लगाई उसने, शेर ने, उससे कहा तू भी दहाड़ लगा। उसकी दहाड़ अंदर से नेचुरल निकल आई, इंस्टिंक्ट। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हैव यू बीन एबल टू रिकॉग्नाइज अवर सेल्फ, क्या हमने अपने आप को पहचाना, हु वी आर, आत्मानम विद्धि, व्हाट फॉर वी हैव कम ऑन दिस अर्थ, आत्मावरे ज्ञातव्य, व्हाट इज अवर अल्टीमेट गोल। आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, सफल व्यक्ति के साथ साथ क्या आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक अच्छे गृहस्थ भी बनना चाहते हैं, अच्छे माता पिता ही बनना चाहते हैं, एक अच्छे पत्नी बनना चाहते हैं, अच्छे पति बनना चाहते हैं। अगर सब कुछ बनना चाहते हैं तो सफलता सब कुछ मिला करके बनती है, अकेले नहीं। जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आत्मबोध होता है, तो फ्रूट्स ऑफ द रियल नॉलेज ऑफ सेल्फ इज, आत्मज्ञान जब होता है तो इल्यूजन्स डिसअपियर हो जाते हैं, भ्रांतियाँ चली जाती हैं और सफलता के दरवाजे खुल जाते हैं। आत्मज्ञान, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है और वो दरवाज़ा हट जाए अगर ऊपर का अज्ञान का, तो ज्ञान नीचे से निकल आएगा। वो ज्ञान हमें नहीं है कि हम कौन हैं, हु वी आर, व्हाट फॉर वी कम ऑन दिस अर्थ, इसकी हमें जानकारी बहुत होना जरूरी है। आप लोग पढ़ रहे हैं नॉलेज, आप लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशन। एजुकेशन एंड नॉलेज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। शिक्षा और विद्या दो अलग अलग शब्द हैं। नॉलेज स्टार्ट्स वेयर एजुकेशन एंड्स, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मैं ये चाहता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट में जहाँ एजुकेशन पढ़ाई जाती है, नॉलेज भी पढ़ाया जाए, शिक्षा पढ़ाई जाती है, विद्या भी पढ़ाई जाए। विद्या अपने आप को ऊंचा उठाने की कला, विद्या जो अमृत देती है, विद्या वो जो मोक्ष की ओर ले जाती है। सा विद्याया विमुक्तये, देयर वाज ए वर्स नोन एज विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रत्वाम धनम आपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। लोगों ने कहा बहुत बड़ा है, आज के मटेरियल वर्ल्ड में 21वीं सेंचुरी में बहुत बड़ा है, इसको काट दो, छोटा कर दो। विद्या ददाति धनम तथा सुखम, छोटा कर दिया, काट कर। तो विद्या क्या हुई, हमारे लिए धन और सुख का कारण बन गई। जबकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा और विद्या दोनों मिलकर एक है। शिक्षा इज साइंस एंड विद्या इज अध्यात्म। जब तक दोनों का ब्लेंडिंग नहीं होगा, प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं होगा, दोनों प्रॉपर मिलकर के हमारे जीवन में नहीं उतरेंगे, तब तक हम सफल व्यक्ति नहीं कहला सकते, एक कॉम्प्रहेंसिवली डेवलप्ड पर्सनैलिटी नहीं कहला सकते, एक ग्रंथि विहीन पर्सनैलिटी नहीं कहला सकते। मैं एक डॉक्टर भी हूँ, स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी हूँ। मेरे पास ढेरों व्यक्ति आते हैं जो आईएएस लेवल तक पहुँच गए और आईएएस के बाद सफल व्यक्ति हैं कहने को, परंतु ढेर सारी मन में परेशानियाँ, ढेर सारी कुंठाएँ हैं, ढेर सारे फ्रस्ट्रेशंस हैं। बड़े बड़े इंजीनियर्स आते हैं, बड़े बड़े सीईओज आते हैं और वो रोते हैं, फिजिकल मटेरियल लाइफ में वो फेल्योर है, पैसा खूब कमा लिया पर अपने व्यक्तिगत जीवन में फेल्योर है, उनको जीवन जीना नहीं आता। तो आपको जीवन जीने की कला सीखना पड़ेगा। यू टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग, एंड लर्निंग द आर्ट ऑफ लिविंग इज स्पिरिचुअलिटी। I want you to go through scientific spirituality. Knowledge is closer to spirituality. Knowledge of spirituality enhances one's inner strength. ज्ञान जिसको कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते, ज्ञान से ज़्यादा पवित्र धरती पे कुछ भी नहीं है। आप पवित्रतम चीज़ इसको मानिए कि ज्ञान आप गेन करिए। जो आप पढ़ रहे हैं ये शिक्षा है,
आपको जो प्राप्त करने के लिए मैं कह रहा हूँ विद्या, ज्ञान जिसको कहा गया है, एजुकेशन इज क्लोजर टू मॉडर्न डे साइंस, इट्स इन्फॉर्मेशन मेक्स मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस ईजियर, द नीड ऑफ टाइम इज इंटरकम्युनियन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी को कंपल्सरी सब्जेक्ट बना दिया है, सब में BSc, BA, MSc, BA, MA सब बच्चे पढ़ते हैं साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। आई वॉन्ट टू एक्सपोज देम टू ए कंसेप्ट व्हेन द साइंटिफिक रिलीजन विल बी द रिलीजन ऑफ टुमारो। 21st सेंचुरी में एक साइंटिफिक रिलीजन होगा, हम रिलीजन को साइंटिफिकली असर्टेन कर पाएंगे, वी विल बी एबल टू जस्टिफाई रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ साइंस। दिस इज व्हाट इज साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ अवेकनिंग ऑफ इनर पावर वी हैव सो मेनी स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स टुडे। आज जैसे एग्जाम आता है स्ट्रेस डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, बहुत सारी तनावग्रस्त परेशानियाँ हो जाती हैं, साइकोसोमेटिक बीमारियाँ हो जाती हैं। मेनी ऑफ अस इवन डोंट नो दैट आवर ऑल प्रॉब्लम्स आर टुडे ड्यू टू आवर डॉर्मेंट इनर सेल्फ। हमारे अंदर का जो आत्मबल है वो कमज़ोर पड़ गया है, उसको यदि हम जगा लें तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स? सफलता पाने की टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है? ऑटो सजेशन, अपने आप को सजेशन दीजिए, यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन दिस अर्थ, यू आर डूम टू गेन सक्सेस। आपको सफलता मिलकर रहेगी यदि आप प्रयास करेंगे। पावर ऑफ सिलेबल्स, गायत्री मंत्र की शक्ति आपको मिले तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। प्राणायाम के माध्यम से आप 5 मिनट प्राणायाम करिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। आप देखिए प्राणायाम की शक्ति से आपका इनर विल पावर मजबूत होगा। मेडिटेशन एवरीडे 5 to 10 मिनट्स। रेगुलर योगा, 5 मिनट 10 मिनट का योगा, मैं 3 कैप्सूल देता हूँ, 5 से लेकर 10 मिनट फिजिकल एक्सरसाइजेज, योगा एंड डाइट टू बी ऑब्जर्व। सेकेंडली सूक्ष्म शरीर के लिए प्राणायाम और सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव लिटरेचर, स्वाध्याय। हमारी अखंड ज्योति प्रकाशित होती है, अखंड ज्योति मैं लिखता हूँ, अपने गुरुदेव की वाणी है और पिछले 80 साल से प्रकाशित हो रही। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही रिलेवेंट टुडे, आज के युग में बहुत ही एक ऐसी पत्रिका जिससे आपको टाइम टू टाइम मार्गदर्शन मिलता है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव लिटरेचर। एंड थर्डली कारण शरीर, श्रद्धा, इसको बढ़ाने के लिए क्या करें? इसके लिए ध्यान, और ध्यान के साथ साथ एक रेगुलर प्रैक्टिस आप करिए, एक वर्क ऑफ चैरिटी, कुछ न कुछ अच्छा काम, किसी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया परामर्श, किसी को ऊंचा उठाने के लिए दिया गया सुझाव, यदि ये आपके जीवन में आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। आई एम जस्ट स्किपिंग ऑल दिस डिटेल्स फॉर वन रीजन, दैट वी हैव टू कम टू ए पॉइंट। यू आर योर वर्स्ट एनिमी एंड यू आर योर बेस्ट फ्रेंड, गीता कहता है। गीता में कहा गया है, योगेश्वर कृष्ण ने कहा है, आत्मई हुई आत्मनो बंधु, आत्मई रिपु आत्मना। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। तो अपने मन को मनाइए और अपने हारे मन को अपने दूसरे मन से जिताइए। इनर स्ट्रेंथ ब्रिंग्स विथ इट इनर जॉय एंड हैप्पीनेस, सक्सेस कम्स ऑटोमेटिकली, कॉन्फिडेंस एनहांसेस, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सफलता हमारे लिए आत्मविश्वास का राजमार्ग लेके आती है, और सफलता जैसे ही आई वैसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, नहीं वी कैन अचीव सक्सेस डेफिनेटली। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला के 4 अंग हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्मयुक्त जीवन, राइचस लिविंग, अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक गोल्स बाय राइट मीन्स, अर्थ हमारे अंदर की शक्ति भगवान की दी गई शक्ति है, तो ये समाज की सुरक्षा में लगे और हमको अच्छा बनाने में, स्वस्थ बनाने लगे, काम। और लिबरेशन फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस, बंधनों से मुक्ति, मोक्ष। आर्ट ऑफ बिकमिंग इज फॉर साइटेडनेस, दूरदृष्टि, दूर का सोचिए पहले, डिस्क्रिमिनेटरी विजडम विकसित करिए और अपने से आगे का सोचिए, लाइफ बियॉन्ड पाइटी सेल्फ। आर्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने की कला, यू बिकम लाइक वॉट यू थिंक, जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। अगर आप आज सोचें कि हम कल सफल व्यक्ति होंगे तो आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे। अगर आप सोचें आप किसी काम के नहीं हैं तो आप किसी काम के नहीं बनेंगे। जैसा आप सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। किसी विद्वान ने कहा है, वॉट एवर यू थिंक यू बिकम लाइक दैट, वॉट एवर यू थिंक यू स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दैट, वॉट एवर यू स्पीक योर ऑल हैबिट्स, ऑल द एक्शंस दे बिकम लाइक दैट, हैबिट्स and then the personality traits they become like that and ultimately your character is defined by that. So अगर आप जैसा सोचेंगे, जिन चीज़ों पर विचार करेंगे वैसे बन जाएंगे। इसके लिए स्वाध्याय जरूरी है, टाइम स्केड्यूलिंग जरूरी है, टाइम पे चलना, सुबह से शाम तक का टाइम टेबल बनाइए, 8 घंटे पढ़ाई के, 8 घंटे आपके सोने के। अब 8 घंटों में आप ये कैलकुलेट करेंगे कि 2 घंटे हमारे ग्वालियर आने जाने के, चलो उसको ही मान लीजिए, हमने 2 घंटे माइनस कर दिए। 6 घंटे का टाइम टेबल तो बना सकते हैं ना। 6 घंटे का टाइम टेबल कैसे बढ़िया बन सकता है? स्ट्रेस फ्री वर्किंग, चेयरफुल एटीट्यूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी, हर अवसर का उपयोग करिए, यह आर्ट ऑफ वर्किंग है। चेयरफुल एटीट्यूड नहीं होगा तो हमेशा उदास रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे,
और हंसते हुए रहेंगे तो आधा अचीव कर लेंगे। हंसने वाला व्यक्ति, प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति आधी सफलता को अपने हाथ में, मुट्ठी में कैद कर लेता है। अफेक्शनेट एंड लविंग रिलेशनशिप विद फैमिली एंड सोसाइटी एंड देन ट्रांसफरिंग दिस प्रिविलेज टू अदर्स। आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, साधना के माध्यम से ऑर्गेनाइज करना सीखिए। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इज द जॉब ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द चेयरमैन, बट योर जॉब इज टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। हाउ टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन प्रॉपर वे? लिविंग विद हेल्दी डाइट, खाना अपना सही खाइए। हम लोग जैसा अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। यदि हम अपना मन सही रखना चाहते हैं तो अन्न को सही करें। सात्विक डाइट, फ्रूट्स एंड नट्स, सलाद, स्प्राउटेड पल्स, अंकुरित अन्न, बीन्स एंड पल्सेस, इसको खाने का अभ्यास करें। ट्रेनिंग द बॉडी विद रेगुलर एक्सरसाइजेस, सीडेंटरी लाइफ से बचने के लिए, रैपिड डिटेरियोरेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी फंक्शन से बचने के लिए डेली एक्सरसाइज करिए। वॉकिंग का एक अभ्यास बनाइए नियमित रूप से। आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, तो स्पिरिचुअली भी फिटनेस रहेंगे। रेगुलर वॉकिंग, स्विमिंग, एरोबिक एक्सरसाइजेस, डांसिंग, दीज आर द फ्यू एक्सरसाइजेज विच यू कैन डू। प्रज्ञा योग हमारे कराते हैं। एसेंस ऑफ योगासन्स आर द टुडेज लाइफ स्टाइल, फॉर टुडेज लाइफ स्टाइल। और प्रज्ञा योग में 16 पोस्चर्स हैं। 16 पोस्चर से आप बिल्कुल एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी, बहुत सारी परेशानियां नहीं आएंगी, शारीरिक तकलीफें नहीं आएंगी। गायत्री मंत्र एक प्रकार का आपके लिए ऐसा अमोघ मंत्र है कि ये बहुत सफलता देता है। जितने लोग गायत्री मंत्र का जप मन लगा के करते हैं उनको सफलता मिलती है। व्यस्त रहें, मस्त रहें, पहला सूत्र गुरुदेव ने दिया। सलाह लें, सम्मान दें, प्रसन्नता बांटें और दूसरों के दुख दर्द जो हैं उनको भी आप बटाने की कोशिश करें। ये हमारे गुरुदेव का प्रिंसिपल है। ये देव संस्कृत यूनिवर्सिटी है जो आप देख रहे हैं सामने, विश्वविद्यालय जो हमने खड़ा किया है, उसका एक छोटा सा दृश्य है, झलक है जो देख रहे हैं सामने। इसमें अभी 2000 छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं। 70% है गर्ल्स, 30% है बॉयज़। इट इज़ फुल्ली रेजिडेंशियल, और फुल्ली रेजिडेंशियल है। इसमें योग का कोर्स है, इसमें साइकोलॉजी का कोर्स है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैंने जो अभी कोर्सेज चल रहे हैं उसमें कॉर्पोरेट एक्सीलेंस एंड मैनेजरियल एक्सीलेंस वो हम चालू कर चुके हैं। इसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कल्चर एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ऑल दिस वी आर टीचिंग। और इसके साथ साथ हम जीवन जीने की कला पढ़ाते हैं। मैं खुद ध्यान की और गीता की क्लास एवरी वीक लेता हूँ। आई एम नॉट सपोज टू टीच एज पर माई ड्यूटी, बट आई टेक द क्लासेस फॉर माई ओन बेटरमेंट एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज़। ये वही यूनिवर्सिटी की एक झलक दिखा रहा हूँ आपको। 200 किलोमीटर दूर दिल्ली से और 6 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन हरिद्वार से, उसी की एक झांकी। मैंने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ये हमारा रिसर्च सेंटर है जहाँ पे हम रिसर्च कर रहे हैं साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। ब्रह्मवर्चस्व 1979 में बना था। और ये हमारे हेडक्वार्टर्स एट हरिद्वार है। ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं ये शांति कुंज का एक अलग एंगल से, और नीचे वाला शांति कुंज का एक बहुत दूर से लिया फोटो। ये जो आप देख रहे हैं गंगा है सर, ये गंगा नदी है जो पीछे आ रही है। और ये पूरा कैंपस 200 एकड़ में फैला हुआ है। कुल मिला के करीब 300 एकड़ में सारा अक्षर शांति कुंज बना हुआ है। आप सबको भावभरा आमंत्रण है, आप आइए वहाँ पर। कभी भी इसका स्टडी टूर हमारे बच्चों की बना के भेजिए इनको एडवाइस करिए कि जब भी कभी छुट्टी मिले तो ये लोग आएँ हमारे यहाँ, हमारे यहाँ बच्चों से मिलें, देखें किस तरह से अपने जीवन को ऊंचा उठाया जा सकता है, कैसे हमारे यहाँ के बच्चे भी डेवलप हो रहे हैं, उनको भी देख के मज़ा आएगा इनको। और ये भी लगेगा कि वास्तव में सक्सेसफुल लाइफ इज़ समथिंग विच कैन बी लर्नड इन स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। ये हमारे गुरुदेव माता जी हमारे फाउंडर हैं। गुरुदेव ने 1911 में जन्म लिया और 1990 में शरीर छोड़ा। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वंदनीय माता भगवती देवी हमारी मिशन की वो प्यार दुलार बांटने वाली परम पूज्य गुरुदेव की धर्मपत्नी। मथुरा में ही यहीं पर उन्होंने काम किया, आगरा के जन्म लिया था। परमवंदनीय माता जी 94 में शरीर छोड़ा। परमवंदनीय माता जी और गुरुदेव आज नहीं है, पर हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। लास्टली, पर्सनल सक्सेस के लिए एटीट्यूड टू बी टोटली पॉजिटिव, बी ट्रांसफॉर्म। आई आस्क यू टू बी ट्रांसफॉर्म टुडे।